Hi, good morning students. Today in our class 10th, we will start our next chapter because 9 chapters we have completed and next chapter is 10 and chapter is circles. So let's we start our new chapter that is circle. So first of all, the name of the chapter is circle. So you must about the definition of the circle. So for circle you will say the definition will be the circle is the collection of all points on the plane at equal distance from a fixed point. This will be the fixed point, and suppose these are the points which are at equal distance, and this circular path is the collection of the points. Is known as the circle. This equal distance will be known as the radius, represented by smaller r. This fixed point is center, represented by O, and this collection, this path will be known as the circumference of the circle. So ये सब पहले की चीजें थी. इसके बाद जो सर्किल के जो टर्म्स आते हैं डिफरेंट, जैसे सेंटर हो गया, रेडियस, डायमीटर, सेगमेंट, सेक्टर, ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. फिर भी एक बार मोटा मोटा आपको बता देते हैं. देखिए ये सर्किल है, कोई लाइन सेगमेंट जो सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. इज नोन एज द chord of the circle. A line segment which divides a circle into 2 equal parts is known as the diameter. D से रिप्रेजेंट होता है और D और रेडियस में रिलेशन होता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है. See, a line segment which divides a circle into 2 parts is known as a chord, and into 2 equal parts is known as the diameter. Okay. Then the parts divided by the chord, this one, are known as the segment, and the smaller part is known as minor segment, and greater part is known as major segment. Okay. Suppose the parts divided by two radii in a circle. Part is known as the sector. In the same way, smaller part is known as minor sector, greater part is known as major sector. Okay. Now let's we start our topic. Some other topics points are also related to circle. Our topic is tangent to a circle. See, if there is a circle and there is a point on the circle, on the circumference, if a line passes through this point, is known as the tangent to the circle. Is known as tangent to the circle. If a line passes through the circle intersecting at 2 points,
this line is known as secant of the circle, secant line. This is known. So first of all, we will count number of tangent lines. So in a circle, if there is a point on the circumference, only one tangent line we can draw. If there is a point inside the circle, then we cannot draw any tangent line, because when we draw a line passing through this point, this line will be secant, and the tangent line will intersect only at one point of the circle. Okay, and if a point lies outside the circle, then there will be two tangent lines to this circle. From this point we can draw two tangent lines to the circle, right? See, the important thing is the point at which the tangent line intersects the circle is known as point of contact. This point is known as point of contact, and this line is a tangent line. Now see the relation between the radius and the tangent of the circle, and that is our first theorem. Theorem is the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. थ्योरम है 10.1 थ्योरम है ये. थ्योरम में बोलता है कि जो टेंजेंट है सपोज ये एक्स वाई टेंजेंट लाइन है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है पी. रेडियस बोलते हैं रेडियस, ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, ये अपने को प्रूव करना है. हम लिखेंगे गिवन. गिवन में हम लिखेंगे इन सर्किल with center O and radius R, xy is the tangent line and P is the point of contact. इसमें आएगा टू प्रूव. टू प्रूव में अपने को लिखा है OP will be perpendicular to XY. This we have to prove. Now see proof. Proof we will take. You take a point Q on the line XY other than P. Then there will be two cases. That point Q will lie outside the circle, because if we take this point Q inside the circle, then XY will be the secant line of the circle. अगर ये Q पॉइंट इसके अंदर होता, ये XY लाइन पे होता, तो XY क्या हो जाती है अपनी secant लाइन होती. तो हम लिखें the point Q will lie outside the circle, because if Q lies inside the circle,
then XY will be the secant line. अगर ये Q इसके अंदर होता तो ये secant line होती। अपने को Q को आउटसाइड लेना है। नाउ ज्वाइन OQ, OQ को आपको ज्वाइन करना है। ओके, देन OQ विल बी ग्रेटर देन OP, बिकॉज P जो पॉइंट है वो तो इसके सरकमफ्रेंस पे है और जो Q पॉइंट है वो इससे आउटसाइड है, तो जो OQ डिस्टेंस रहेगा वो OP से ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। हैंस OP will be the shortest distance from center to tangent line, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलरली लिया जाता है। सो OP विल बी परपेंडिकुलर टू XY। एक बार वापस समझिए थ्योरम क्या थी। थ्योरम थी कि जो टेंजेंट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टेंजेंट लाइन रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, ये अपने को प्रूव करना है। तो गिवन में अपने पास क्या है, सर्किल है जिसमें O सेंटर है और रेडियस R है। XY जो है वो टेंजेंट लाइन है और P जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ये हमने यहाँ पे शो कर दिया कि ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव में अपने को OP XY पे परपेंडिकुलर हो गई, ये अपने को प्रूव करना है। प्रूफ में हम लेंगे अनदर पॉइंट लेंगे Q on the XY, then Q will lie outside the circle, because if Q lies inside the circle then XY will be the secant line, and then we will join OQ, then in triangle OPQ, OQ is the greater distance. Why? Because Q point lies outside the circle and P is on the circumference, then OQ will be the greater than OP. Hence in each case OP will be the shortest distance from the point to the tangent, and shortest distance is always calculated at perpendicular. Okay, next, अगर ये Q पॉइंट आप इस पे लेते हो सरकमफ्रेंस पे, ये केस भी नहीं होता, बिकॉज जो सरकमफ्रेंस पे जो टेंजेंट लाइन होती है वो सिंगल वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ओके, सो एक ही केस पे होता है। नाउ सी आवर एक्सरसाइज है 10.1, वो हम आपसे फटाफट सोल्व करवा लेते हैं। एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। एक सर्किल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। सो देयर विल बी ओनली 2 टेंजेंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन। जो टेंजेंट होती है सर्किल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, एट इन 1 पॉइंट। ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। जो एक लाइन है जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, दैट इज नोन एज द सेकेंट लाइन। ए सर्किल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट्स क्या होते हैं, देखिए एक सर्किल में जब एक आप डायमीटर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जब आप लाइंस ड्रॉ करते हो तो ये आपके पास टेंजेंट की पैरेलल लाइंस आती हैं, पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं। सो देयर विल बी 2 पैरेलल टेंजेंट्स। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो कॉमन पॉइंट होता है ये वाला, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center at a point Q so that OQ is 12 cm, length OP, tangent है PQ। सी ये सर्किल है, PQ एक टेंजेंट है, सेंटर से जो डिस्टेंस देता है वो देता है, तो ये 90 डिग्री होता है।
और इसमें बोलते हैं कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, पूरी डिस्टेंस है ये 12 सेंटीमीटर है। आपको लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए कि जो पी ओ क्यू ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि ये 90 डिग्री रहेगा, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और ओपी को पी क्यू को कैलकुलेट करेंगे और वो आपका 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ ए सर्किल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट one of a tangent and the other is secant to the circle। तो ये आपको ड्रॉ करना है, एक तो टेंजेंट रहे और एक सीकेंट रहे। तो आप क्या करेंगे, एक सर्किल लेंगे, सर्किल पे आप क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका सेंटर, ये आप ओ पी पॉइंट ले लेंगे, पी पे जो है वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। अब एक आपको ये एक्स वाई लाइन ले लीजिए, सीकेंट लाइन ड्रॉ करनी, तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए या इस ओ पॉइंट पे बना दीजिए। सपोज हमने यहाँ पे लिया कोई भी पॉइंट है क्यू, इस क्यू पॉइंट से पास होके ये 90 डिग्री है, तो इधर 90 डिग्री एंगल बना के आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये पैरेलल लाइन रहेगी और सीकेंट रहेगी, दैट विल बी एक्स डैश वाई डैश, और ये पॉइंट ए बी पे इंटरसेक्ट करती है। ओके, सो ये आपकी 10.1 एक्सरसाइज थी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो थ्योरम आती है वो आती है 10.2, और आज की लास्ट थ्योरम है, बस यहीं तक आपको करना है। सी थ्योरम 10.2 में क्या देता है वो, आपसे बोलता है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। एक सर्किल है, सर्किल पे कोई एक एक्सटीरियर पॉइंट है, सपोज हमने पी पॉइंट लिया, इससे कहता है कि इसकी जो टेंजेंट लाइन से ड्रॉ होंगी, ये ए ले लिया, सपोज ये बी ले लिया, ये पॉइंट हो गया हमारा ओ। हमें प्रूव करना है कि जो एक्सटीरियर पॉइंट है उससे जो ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है दे विल बी इक्वल इन लेंथ, मीन्स पी ए जो है वो पी बी के इक्वल होगा, ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे गिवन, गिवन में लिखेंगे हम इन सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, P is a point outside the circle, PA and PB are two tangents to the circle। Okay, then to prove में अपने को क्या करना है कि जो पी ए है वो पी बी के इक्वल आएगा, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टेप इसमें कुछ करना नहीं है आपको, या कंस्ट्रक्शन में लिखो तो लिख देना, कंस्ट्रक्शन में लिख देना ज्वाइनिंग ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, फिर आता आपका प्रूफ। देखिए ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब इस रिजल्ट का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी, ओ पी को भी ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। अब अपने पास से टू ट्रायंगल्स बनती हैं, POA एंड POB। अगर आप इन टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम PA और PB को सिंपलिसिटी से इक्वल बता देंगे। सो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। इसमें आप लिखेंगे कि इसका जो एंगल A है वो इसके एंगल B के इक्वल है कि ईच ऑफ 90 डिग्री है। आपका जो OA है वो इसके OB के इक्वल है, ये लिखेंगे कि
रेडियाई है, और उसके बाद आपका जो OP है वो OP के इक्वल आ जाएगा, ये कॉमन है आपका। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे भाई RHS क्राइटेरिया। ट्रायंगल POA will be congruent to triangle POB, then PA is equal to PB by CPCD। ये अपने को प्रूव करना था कि PA और PB इक्वल आएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, सर्किल है, P से एक्सटीरियर कोई पॉइंट है, इसे 2 टेंजेंट लाइन से ड्रॉ की है और इसका सेंटर है। हमें प्रूव करना है कि जो PA और PB है वो इक्वल लाइन से हुई। तो हमने क्या किया, OA OB OP को ज्वाइन किया है। फिर ट्रायंगल जो POA और POB ट्रायंगल्स हैं, इनमें आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अपने पास जो OA है वो OB के इक्वल है, क्योंकि ये सेम सर्किल की रेडियस है। ये एंगल 90 डिग्री होगा। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और रेडियस होता है वहां पे एंगल 90 डिग्री होता है, और OP और OP जो है वो कॉमन है, तो वो इक्वल हो जाएंगी। तो अपने को RHS क्राइटेरिया से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद PA और PB जो है वो इक्वल लेंथ्स आ जाएंगे। ओके, ये अपने को प्रूव करना था। सो 10.1 एक्सरसाइज करेंगे और 2 ये थ्योरम है, ये करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो 10.2 एक्सरसाइज है उसके जो एग्जांपल्स हैं वो करवाए जाएंगे, और फिर आपको एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं डालता हूँ, देखिए 10.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस 10.2 के करना, और 10.1 कंप्लीट, और थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2। दिस विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक्स।